and how you all are, my friend. Hope you all are doing great and fantastic in your life. This is the third day of my 30 days speaking English challenge, and you are welcome on my channel Learn English with Rupa. And in this video we are going to totally focus and we are only going to discuss on grammar, because being a learner, grammar is really important. If I am speaking here with confidence, so because of the grammar. But I just want to tell you that we don't, and most of the people, majority of people does not know what is the correct way of learning grammar, and they do a lot of mistake. And I just wanted to conclude here one thing, that there are so many people who are despair because they are learning this language for 4 year. It's been 4 year, 3 year, 2 year, 1 year, but they have not grasped fluency in English. And fluency matters a lot. Fluency, confident matters a lot in order to learn English. And so in this video I am going to tell you that what is the correct way of learning grammar, because in order to learn English, learning grammar style is totally changed. So in this video I am going to tell you, and even I am going to give you some suggestion. And I just want to tell you that whatever the grammar you are learning, just put that on the real situation. If you put any grammar rule in a real, if you put grammar rules on a real situation, so you are going to get good result, because you are watching that thing, that is whatever is happening, you are watching and you are just putting. So this is the correct way of learning grammar, and in this video I will show you each and everything. So be in this video, and this video is going to be really amazing. And this is how I used to learn, means जो भी मैंने किया है, whatever I have done, I am going to tell you. And I'm really happy because of you all. I'm recalling that when I was beginner, so how I used to struggle in order to learn grammar, in order to speak. So I'm really happy to help you all. So be in the video and let's get started our video. Before teaching you grammar, I just want to tell you, those who are beginner, जो अभी मीन्स कि आप कुछ नहीं जानते हो, अभी आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए हो, तो आप डायरेक्टली ग्रामर पर मत जंप कीजिए. क्योंकि सपोज यू आर चाइल्ड and your mother see, you are 5-year-old, 2-year-old, 6-year-old, and your mother is saying this is the subject, this is the verb, and in this you have to put ing because this is going in continuous, and this that. So will you understand? Did you learn your native language like this? जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी बोलती थी कि ये ग्रामर है, ये वो है. No. Your mother was not doing that thing. You used to do shadowing practice. Yes, what is shadowing practice? In this video I will tell you what is shadowing practice. Shadowing practice is really best idea of learning English, and even I have learned it through shadowing practice. See guys, I just want to tell you here one thing, कि आप मेरे को देख रहे हो, मैं अपना हैंड को ऐसे कर रही हूँ, अपने बॉडी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आई एम इवन लाफिंग, आई एम मेकिंग माय फेस इंप्रेशन हैंड. सो जैसे मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुनने के बाद वैसे ही एग्जैक्ट बोल रहे हो, उसे हम बोलते हैं शैडोइंग प्रैक्टिस. एंड मैं जब बिगनर थी, जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था, तो मैं वीडियोस को देखती थी और उसको पोस्ट करती थी, एक लाइन देखती थी, बोलते थे तो उसको पोस्ट करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू do the same thing. Yes, I used to do same thing. And मैंने कल लाइव किया था, उसमें मैंने एक कार्टून देखा था, तो वो बोल रहा था, मैं भी बोल रही थी, उसे ही हम बोलते हैं शैडोइंग प्रैक्टिस. एग्जैक्टली जो मेरे कल लाइव में आए होंगे वो जानते होंगे कि शैडोइंग प्रैक्टिस क्या होता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो अगर आप बिगनर हो तो आप डायरेक्टली ग्रामर पर जंप मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं समझोगे लिटरली. एंड
अगर हम लोगों के पास इन्वायरमेंट नहीं है तो इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. बट अगर आप थोड़ा सा बोलना सीख गए हैं एंड आप बोलना सीख गए हैं, लेकिन आपको लोग बोल रहे हैं कि हाँ आप बोल रहे हैं अच्छा, यू हैव ग्रैप फ्लुएंसी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन ग्रामर. सो यू एट दैट टाइम यू नीड टू फोकस ऑन द ग्रामर. क्योंकि जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था तो मैं डायरेक्टली ग्रामर पर नहीं चली गई थी, मैं पहले बोलना सीखी. तो मैं जब मेरा फ्लुएंसी अच्छा हो गया, कुछ अच्छा हो गया, तो मुझे लोग बोलने लगे कि हाँ तुम्हारा फ्लुएंसी तो अच्छा है लेकिन यू आर डूइंग सो मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक. सो नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन द ग्रामेटिकल मिस्टेक. सो मैं उस पर काम करने लगी. यस, मैं उस पर काम करने लगी, अपना उस पर काम करने लगी. सो अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब मैं कैसे अब लोग तो करते हैं, बहुत लोग करते हैं टेंसेस, ग्रामर का प्रैक्टिस करते हैं, बट क्या सही तरीका है ग्रामर को प्रैक्टिस करने का इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, आई एम गोइंग टू टेल यू. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपका टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर है तो आपका 50% इंग्लिश आप बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं, मैंने कल खाया था, कल वो आई थी, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ, मैं वो ऐसे बोलते हैं. तो यानी कि आप देखो कि कोई पास्ट में हो रहा है तो कोई फ्यूचर में हो रहा है तो कोई प्रेजेंट में हो रहा है. यानी कि अगर आपको टेंसेस पर पूरा कमांड हो जाए, I'm going to tell you, I have notebook too so that I can explain you well. Okay, I am doing effort, I am putting my extra effort, so you have to also help me. Means if you are getting better result and if my videos are helping you, so write in the comment section. I am waiting for the comment. हाँ कि ये वीडियो अच्छा है, ये मुझे बहुत हेल्प किया, मैं इससे बहुत सीखा, तो write in the comment section ना. Okay, so let me tell you how you have to learn tenses. What is the correct way to learn tenses? Because ta tha, ti thi, wo वे, रहा था, रही थी, दिस विल नेवर गोना हेल्प यू टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. हमारे स्कूल में टीचर, हमारे इंग्लिश टीचर ने बोले थे कि रहा है, रही है, ता है, थी, तो ये सब रूल फॉलो करना है. तो वो सिर्फ लिखने और पढ़ने के लिए और ट्रांसलेशन बनाने के लिए है. बट इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, इफ यू फॉलो दैट ट्रिक यू वॉन्ट बिकम फ्लुएंट. यस, मैं बोल रही हूँ, उसको समझना पड़ेगा. एंड टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. सो कम ऑन टेंसेस. I have written टेंस. टेंस का मतलब क्या होता है, डू यू नो? टेंस का मतलब होता है कि टाइम प्लस में सेंस. टाइम प्लस में टेंस, टाइम प्लस में सेंस इज टेंस. टाइम प्लस में सेंस इज टेंस. टाइम प्लस में सेंस इज टेंस. यानी कि जो समय को बताता है, जो समय की तरह ही एक सेंस बना दे. जैसे कि एक लड़का है, मैं कल बाजार गया था, तो टाइम के तरह वो सेंस, कल गया था, तो कल गया था पास्ट में हो जाएगा. सो वह कल बाजार गया था, ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे. सो ऐसे. बट टेंसेस को सीखने का क्या तरीका है, देखो एक एग्जांपल मैं बता दे रही हूँ आप सभी को, एंड मैं एक चैनल भी सजेस्ट करने जा रही हूँ आप सभी को, ताकि वहां से आप ग्रामर सीख जाए. क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अपलोड ऑल द, इट इज पॉसिबल, आई कैन अपलोड, बट देयर आई मस्ट हैव टू मेक न्यू चैनल फॉर दैट, यू नो. सो आई हैव नॉट एक्जैक्टली टाइम. सो एक बात मैं बता रही हूँ कि जब कोई काम हो रहा है प्रेजेंट में, तो उसमें हम इज, एम, आर प्लस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं. और यहाँ पर सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट मतलब जो कर रहा है, और इसमें आईएनजी मतलब कि है, इज मिस है, एम इज हूँ, और हो है में आर लगता है. देखो सब्जेक्ट में कोई व्यक्ति ही हो सकता है, जो मेन है उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसमें ये लगेगा और फिर आईएनजी लगता है. जैसे सपोज दैट कि ही इज अ पर्सन. ओके, ये कोई लड़का है, हिज नेम इज व्हाट, मोहन. इसका नाम मोहन है. तो ये क्या कर रहा है अभी, सपोज दैट कि वो थिंक कर रहा है. अभी ये प्रेजेंट में जो ये है ना, ये सोच रहा है, ये प्रेजेंट में कुछ सोच रहा है, तो ये प्रेजेंट में हो रहा है. तो मोहन इज थिंकिंग, कितना आसान है, मोहन इज थिंकिंग. वह खा रही है, सी इज ईटिंग. मतलब कि आपको ये नहीं, अब आपको ये नहीं सोचना है रहा है, रही है, तो उसमें क्या लगेगा कि ये काम कंटिन्यू है. कंटिन्यू से क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है. ठीक है ना, कोई काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यू से कंटिन्यूअस हो जाता है. तो आपको ये अब नहीं जाना है, यू हैव टू मेक अ सेंस बनाओ. रहा है, रही है, पास्ट वाला मैंने बताया कि सेंस, देखो क्या सेंस कह रहा है, उसके तरीके से रूल को फॉलो करो. एंड फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम होगी आपको, वर्ड मींस की जितना फास्ट हम लोग बोलते हैं आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपका कमांड नहीं, यू हैवंट ग्रैब. बट इफ यू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, आई नो यू विल डेफिनेटली बिकम फ्लुएंट स्पीकर. यस. सो एक सेंटेंस में बता रही हूँ कि लाइक ही इज डांसिंग, ही इज सिंगिंग, सी इज वीपिंग,
एंड ही इज गोइंग टू स्कूल, कितना सेंटेंस, एंड आप इसको मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं। आई एम कुकिंग फूड, आई एम वॉशिंग यूटेंसिल, आई एम वॉशिंग लॉन्ड्री, माई मदर इज कुकिंग फूड, माई ब्रदर इज टेकिंग बाथ, माई सिस्टर इज कॉमिंग हर हेयर। सो बहुत ज्यादा है। और यही जब देखो ये जब सोच रहा है तो समझ लीजिए ये कल हो गया, कल हो गया तो क्या लिखेंगे, वॉज यहाँ पर लगा देंगे, सिर्फ वॉज तो लगेगा। ही वॉज थिंकिंग व्हेन आई वेंट हिज होम, ही वॉज थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाट ही वॉज थिंकिंग। सो ये बहुत बहुत ही ईजी है, इट इज सो ईजी, सो ईजी, ठीक है ना, बहुत ईजी है। आप कोई भी चीज को, कोई भी आप काम करें, उसको सिचुएशन को उसको समझो और समझ के यूज करो। को मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी देखो। सो एग्जैक्टली गाइज अब समय आ गया है बताने को कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी। देखो यहाँ पर कप है एंड इन दिस हैंड आई हैव water, glass bottle, and in this I have water. So मैं ऐसे प्रैक्टिस करती थी। At the morning government has given us one all, government water comes, okay. So while doing work I used to speak in English, and even मैं अपने ग्रामर को उसी पे डालती थी और उसी में पुट करती थी। जैसे कि आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास बॉटल। तो देखो इनटू क्यों मैंने बोला, इनटू क्यों मैंने बोला, क्योंकि वो एक्शन उस समय हो रहा था, एक्शन वाज गोइंग ऑन, ठीक है ना, एक्शन हो रहा था, इसीलिए मैंने इनटू बोला। अब एक्शन हो गया, सो आई हैव पोर्ड वाटर इन द व्हाट इज दिस, इन द बोतल, इनटू द बोतल, इन द बोतल। अब मुझे, मैं तो बहुत पुराना हो गया, मैं बहुत समय पहले, ये 1-2 साल हो गया, तो मुझे कैसे याद है इतना छोटा छोटा सिली मिस्टेक जो पीपल करते हैं, मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने अपने जो भी मैंने ग्रामर सीख रही थी तो उसको मैं रियल सिचुएशन में यूज कर रही थी। यहाँ पर मैंने आपको इतना अच्छा से समझाया कैसे, कि देखो ऐसा लाइक मैं सोचती हूँ कि हमें ऐसा पढ़ना चाहिए कि कभी किसी को जरूरत पड़े तो हम उसे अच्छा से एक्सप्लेन कर दें, नहीं कि लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हेन इट्स कम टू tell other about that you are just like humbling, hesitating, and you are unable to know. You don't have to study like that. You have to study so that you have to make and you have to build yourself like this, so that you can also explain whatever you are reading in a better manner to other person. Yes, ये मेरा मोटिव है। मैं बहुत मिस की, अब आप कहोगे तो मैं एक एक्शन भी पूरा अपलोड कर दूंगी, पूरा ग्रामर का मैं कैसे करते थे एग्जैक्टली, मींस दिस इज द वन थिंग व्हिच आई हैव डन, बट आई डू अ लॉट ऑफ थिंग, यस आई डू अ लॉट ऑफ थिंग इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, एंड मैं अभी करती भी हूँ एंड करती भी थी। सो आपको क्या करना है कि लाइक देयर इज अ वन चैनल चंदन सर, एंड ही teaches very well grammar. He does not teach on the board like that. He doesn't teach on the board. वो बोलते हैं कि आप ग्रामर को आप समझ लिए कि हाँ इसमें ये प्रेजेंट में हो रहा है तो आईएनजी लगाना है। अब उसको आप क्या कीजिए ना कि मतलब कि एक आज आप एक ही टेंस सीखिए, एक ही टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखिए, एंड होल डे उसमें सेंटेंस बनाइए, आप यूज कीजिए उसको। अगर आप रूल समझ आते हैं तो अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए, एंड उसको रूल्स को एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसमें रख दीजिए कि बाद में आपको इफ यू फॉरगेट सो यू कैन लाइक सी एंड अंडरस्टैंड। एंड एक बार समझने के बाद रूल आप अपने रियल लाइफ में यूज कीजिए, उसे बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए एज मच एज यू कैन, एंड दिस इज द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग ग्रामर। ओनली रट्टाफिकेशन के हाँ यहाँ पर ना ता था तो यहाँ पर डू डज का प्रयोग होता है क्योंकि ये इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो ये होगा। अरे वो खा रहा था, खा रहा था है तो वो वॉज प्लस में आईएनजी नो, इसमें समय लगता है एंड हम लोग बोलना है, वी हैव टू जस्ट स्पीक। हमें नहीं कि ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रांसलेशन बनाना होता तो इतना समय हाँ हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन हमें जैसे कि फ्रंट वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो यू हैव टू गिव आंसर like so quickly so that they don't feel awkward, like क्यों ये बंदा अब बोल नहीं रहा है। So we have to just speak. So हमें बोलने के लिए grammar learning style different है, and this is the way which I am flowing, and you should also follow, I think so. So I am going to end the my video, and hope you have enjoyed it. Thank you so much for watching, and I am going to show you the channel. I will keep one photo of the channel so that you can get
the channel and learn grammar. So hope you have enjoyed. Thank you so much. And if this video is helpful for you, so एक description box में अच्छा सा comment कर दीजिए. Thank you. Bye.